सबसे पहली चीज तो एक बहुत बड़ा हुआ बना रहता है कि मैं एक बार डॉक्टर बन गया, मेरी लाइफ सेटल है। You need to do a lot of hard work after getting into a medical. एक टाइम था जब डॉक्टर्स इंजीनियर्स को इतनी इज्जत दी जाती थी और अब तो पेशेंट्स आके मारते हैं. कैन अ फीमेल डॉक्टर सर्वाइव इन दिस रिगरस एनवायरनमेंट? एज अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर क्या चैलेंजेस होते हैं हमें जो कि मे बी सेकेंड जनरेशन डॉक्टर्स को नहीं होते हैं? हाउ पेरेंट्स कैन बिकम सपोर्ट टू देयर चाइल्ड? तो फिर पेरेंट की वजह से वो और डिमोटिवेट हो जाएंगे, मेरे पापा मुझे सिर्फ डांटते हैं। जब बच्चा प्रिपेयर कर रहा है वो अपने ऊपर खुद ही बहुत प्रेशर डालता है. Hello everyone, I am Avinash and I'm sitting with future Dr. Sapna. She is pursuing her MBBS from Atal Bihari Vajpayee College, Government Medical College from Vidisha. And obviously बात है, since she is here, she will tell us more about her. तो सपना पहले तो आप बताइए अपने बारे में, which college you are studying and सबसे important चीज what was your NEET score जिसके basis पे आपको वो college मिला? Hello sir, Yeah. I am Sapna Parwani and I'm studying from ABV GMC Vidisha. I secured a score of 576 marks. Okay. That was NEET 2021 attempt, Okay. and that was my second attempt. Okay. So I took a drop year for that. Okay. Yeah. So सपना, I wanted to understand one thing. सबसे पहली चीज तो एक बहुत बड़ा हुआ बना रहता है कि like okay मैं एक बार डॉक्टर बन गया, मेरी लाइफ सेटल है. So like is it the case या फिर कोई different story है which you want to share with us? Not at all. अच्छा. I totally disagree with this. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका एक बार MBBS में हो गया और फिर आपकी लाइफ सेट है. You need to do a lot of hard work after getting into a medical college. I feel कि वो मेहनत ज्यादा ही है after NEET UG. The difference is कि जब आप NEET UG के लिए प्रिपेयर करते हो तो you learn skills like consistency and hard work. तो वो आपको हेल्प करता है. बाकी if you see the degree of like difficulty that increases only. Okay. That is not less कि एक बार गवर्नमेंट या अगर एक बार आपको मेडिकल सीट मिल गई आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. You need to work a lot more. So I've seen your Instagram. You are a yoga instructor also. आप मैराथन भी रन कर रहे हो. So like how is it possible कि आप कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे हो और like एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी इतना quite you are active. So how is it possible for you? I think one of my life like motto is कि not let medicine consume me. अच्छा. I feel ये बहुत बड़ी चीज है because it gets very overwhelming. पढ़ाई होती है, प्रेशर होता है, like competition भी होता है. Even if you don't want, comparison आ ही जाता है. और when you pursue different activities like sports, anything in sports or like yoga, it keeps your mental health in check. And you need a lot. You need a lot of your mental health to be in place. So yeah. और in life if you see difficulties बढ़ेंगी, टाइम आपके पास और कम ही होगा. So अभी आपके पास सबसे ज्यादा टाइम है तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते मेरे पास अभी टाइम नहीं है, I'll do it later. Because later आपके पास और टाइम कम ही होने वाला है. Like currently I'm in third year. I started my first year. I joined a NGO that was Pragyan Shala. Okay. So every Sunday I used to go there and Pragyan Shala is actually for underprivileged people, like to educate them, to empower them. So every Sunday I used to go there. That I did in first year. Then second year I got interested in yoga. Then yoga happened. Then running happened. So yeah, I feel because I do all of this, I can be better at my MBBS journey. Okay. So let's start from the very start. आपने जब 11th क्लास में आए, you wanted to, you like obviously बात है आपने aspire किया होगा, you wanted to become a doctor. आपने नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, maybe you were not satisfied with the score, so you took a drop. तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, I have seen a lot of people. Yesterday itself I was talking to a person जिसने almost 6 drops लिए, ठीक है? Just they want to get into a MBBS college. So first of all I want to understand from your perspective कि क्या हमें इतना rigorous drop लेना चाहिए? If this is my first attempt, ठीक है, first attempt में चलता है कि you are taking a drop, but second drop, third drop, आपका क्या perspective है इसमें? Because since you have taken a drop. I don't think so कि किसी को भी इतने सारे साल drop लेना चाहिए.
Okay. बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ नीट यूजी निकालना है. आप अगर 6 साल इसमें दे रहे हो, then you are giving your 5.5 years in doing MBBS. Then you are doing PG. Then you are doing super specialization. So why do you want to further lengthen the journey to Okay. just become a doctor? And बहुत बार ऐसा होता है जब हम 11th-12th में होते हैं, we are just kids only, हाँ. like teen. तब हमें ऐसा लगता है कि नीट यूजी हुआ तो हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो उसके बाद लाइफ एंड है. तो इस प्रोसेस की वजह से लोग इतने 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 ड्रॉप्स देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. लाइक आफ्टर माई फर्स्ट अटेम्प्ट, like I was very disheartened, very broken. I thought this is the end of my life, और नीट यूजी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में. But while I was preparing for my second attempt, I had this thing very clear. इस बार हुआ तो अच्छा है, इस बार नहीं भी हुआ तब भी I'm gonna do something good with my life. Okay. Like I was this confident कि कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, तो अपना बेस्ट देते हैं. I became very process oriented rather than result oriented. Actually, I was reading Atomic Habits at that time. Okay. So yeah, I just love this line of that book. Become process oriented and not result oriented. So the only thing in my mind was कि सपना पारवानी, you give your best. जो भी result आएगा देखा जाएगा, वो भगवान जी देख लेंगे. That is not in your hands. बस तू देख, तू हर दिन इतना पढ़ पा रही है या नहीं पढ़ पा रही है. The only goal should be कि रोज अपना input देना है. Then I cleared my second attempt and now I'm in a government medical college. But अगर first attempt, my second attempt मेरा नहीं भी होता, मैं वापस से नहीं करती. I would be doing something else. Okay. In bio only, like there are a lot of options. अभी genetic engineering ये सब boom पे हैं. I feel ये branches और काफी scope भी है. तो कुछ ना कुछ तो you'll do it. Okay. Your world doesn't end at NEET UG if you are not able to clear. Okay. Now, अब मैं काफी सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ. Again, I was talking to a girl just before I was talking to you. मैंने उससे बात करी. She has 72,000 rank. ठीक है. Now I was talking. She is not getting a government medical college. Private college के हिसाब से she does not have that kind of a budget. I said कि why you not opting for BDS or why you not going for Ayush? So they say कि BDS और Ayush का उतना reputation नहीं है सोसाइटी में. So as a MBBS doctor, do you think कि अगर if I'm pursuing BDS, मतलब I'm giving up my MBBS for BDS, can I make a career? क्या मेरी मतलब सोसाइटी में ऐसा तो नहीं होगा कि लोग मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे? ऐसा आई डोंट फील ऐसा कुछ भी नहीं. और अब आप रिस्पेक्ट की बात करते हो, ये तो हम सबने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे देख ही लिया है कि कितनी ही इज्जत है. लाइक एक टाइम था जब डॉक्टर्स इंजीनियर्स को इतनी इज्जत दी जाती थी, और अब तो आप डॉक्टर्स कैसे ट्रीट होते हैं, पेशेंट्स आके मारते हैं लोगों को क्लिनिक में. सो आई डोंट थिंक सो आपका ये मोटिव होना चाहिए कि आपको इज्जत मिलेगी, या फिर दूसरी ब्रांच को नहीं चूज करने का ये रीजन होना चाहिए कि इस ब्रांच में इज्जत नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ यू आर गुड एट योर वर्क, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, पीपल विल लव यू. Okay. नहीं, and one more thing. Okay, respect is one thing. Secondly, I've earned, मतलब एक और चीज लर्न करी मैंने स्टूडेंट से जब मैं बात करता हूँ, हमेशा उनका ये पर्सपेक्टिव रहता है कि MBBS किया तो ही आप यू कैन मेक अ करियर, यू कैन मेक अ लिविंग. BDS में आप भूखे मरोगे या फिर आयुष में भूखे मरोगे. सो आप काफी सारे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते होगे जो हु आर परसुइंग BDS और मे बी आयुष. प्रोबेबली सम पीपल आर ऑलरेडी परसुइंग देयर करियर देयर. तो इज दिस अ रियलिटी या फिर सिर्फ और सिर्फ MBBS ही एक चीज है जहाँ से सब कुछ हो सकता है? I don't think so. I think कि BDS वाले लोग भी बहुत prosper कर रहे हैं, and same with Ayush also. Okay. Like Ayurveda और BDS, dental, both are extremely good if you want to do it. Okay. ये वाला नहीं है कि भूखे मरोगे क्या मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. आज अभी इवन MBBS ग्रेजुएट के लिए भी उतना ही स्ट्रगल है. Like आप अगर MBBS के बाद, आजकल हर कोई MBBS के बाद, जैसे अगर आपने मान लिया कि आप मेडिकल ऑफिसर बन गए, मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए भी देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन. और मेडिकल ऑफिसर बनने के बाद भी आपको जो जॉब मिल रही है, आपको जरूरी नहीं आपकी मनपसंद एरिया में वो जॉब मिल रही है, आपको गांव में भेज दिया, सो योर लाइफ इज वेरी डिफरेंट. या फिर आप नीट PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो टफ ओनली. तो ऐसा नहीं है कि MBBS वाले ही प्रॉस्पर करेंगे, BDS वाले एंड आयुष वाले भी बहुत प्रॉस्पर करते हैं अपनी अपनी फील्ड. ओके.
अब ये तो हो गया BDS, MBBS और आयुष का कंपैरिजन. नाउ कम लेट्स कम टू MBBS. अब MBBS में मैंने देखा है काफ़ी सारे पेरेंट्स का सिंस आई इंटरैक्ट विद देम, उनका ये कहना रहता है कि अगर हमें ये एम्स मिलता है या फिर टॉप कॉलेज मिलता है तो ही एम्स वर्थ इट है, अदरवाइज जैसे आप विदिशा से हो. सो अगेन नथिंग अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन, बट उनका एक पर्सपेक्टिव ये है कि हम रीवा के कॉलेज से क्या सीखेंगे, विदिशा के कॉलेज मतलब एक छोटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्रोबेबली न्यू मेडिकल कॉलेज में हम क्या सीख पाएंगे, स्पेशली हम अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहते इतना दूर. सो लाइक इज इट अ रियलिटी या फिर आप छोटे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी यू कैन मेक योर करियर आउट ऑफ इट? आई थिंक यू कैन मेक अ करियर फ्रॉम एनी कॉलेज, चाहे Okay. वो अभी तो आप जैसे गांव और छोटे मेडिकल कॉलेज या न्यू मेडिकल कॉलेज को कंपेयर कर रहे हो एक ओल्ड मेडिकल कॉलेज से. आई फील कि प्राइवेट वाले भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और गवर्नमेंट वाले भी. Okay. इट्स नॉट जस्ट अ कंपैरिजन अमंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और होना भी नहीं चाहिए. Okay. आई फील इट रियली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. बट हाँ, ऑब्वियसली ये फैक्टर है. अब जैसे एम्स है, एम्स में आपको ज्यादा पेशेंट लोड मिलेगा, और जहाँ पे आपको ज्यादा पेशेंट लोड मिल रहा है वहाँ ज्यादा आपको एक्सपोजर भी मिल रहा है. बट लाइक इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में भी एक्सपोजर अच्छा है. होता है कभी कभी ऐसे कि जो सीरियस केसेस होते हैं वो रेफर हो जाते हैं टू JMC भोपाल एंड एम्स भोपाल ऑल्सो. बट जो मेनली बहुत सारी आपको सर्जरीज देखने को मिलती है, बहुत सारे आपको पेशेंट्स देखने को मिलते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर आल्सो इफ यू वांट टू अटेंड टू इट. सो ऐसा कुछ भी नहीं है ये कि यहाँ नहीं भेजना है, वहाँ नहीं भेजना है. Like if you are getting a medical seat, if it is government, it is great. Especially I'm saying this for the financial issues. Like वो बहुत अच्छा है. और दूसरा हाँ, एक्सपोजर ज्यादा होता है. वो जितना पुराना मेडिकल कॉलेज होगा उतना ज्यादा अच्छा एक्सपोजर होता है. बट ऐसा नहीं है नए मेडिकल कॉलेज में आप कुछ सीख नहीं पाओगे. देयर इज अ लॉट टू लर्न. बहुत सारे पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स की कमी नहीं है, बीमारियों की भी कमी नहीं है, और अच्छा ही है. Okay. Now I want to understand from your perspective, because आप इस चीज को बहुत अच्छे से बता सकते हो as a female doctor. Like obviously you must be aware of what happened in Kolkata. So I want to understand from your perspective कि do you feel the workplaces which we are like you are in right now, are they safe in terms of your मतलब जिसमें आप अपने आप को fully mentally peacefully आप काम कर सकते हो. And secondly, इतना अगर rigorous है तो can a female doctor survive in this rigorous environment? मतलब rigorous in the terms of इतना intense होता. So like what happened in the Kolkata case, she was there for 36 hours. मतलब she was doing all the part of it. So she was mentally exhausted after that 36 hours of shift. So as a female doctor, or I would say future doctor, do you think कि parents को they should think about the other ways, or like is it safe also for you like as a female future doctor? If speaking of like current situations and even before that also, I don't think it is safe. Okay. अगर आप वर्क प्लेस की बात कर रहे हो तो इट इज नॉट सेफ, स्पेशली नाइट ड्यूटीज. और ऐसे एक्सक्लूसिवली स्पेसेस नहीं है, लाइक फीमेल रेस्ट रूम्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है, और जो कि होने चाहिए. आई थिंक हॉस्पिटल्स, और जैसे अभी प्रोटेक्शन एक्ट की इतनी बात हो रही है डॉक्टर्स के लिए, वो भी होना चाहिए लाइक फॉर एवरीवन. आप ये नहीं कर सकते कि आप फीमेल्स को नाइट ड्यूटीज दो ही नहीं, फीमेल डॉक्टर्स को, बिकॉज दैट विल पुट मोर लोड on the male doctors. Okay. So I don't think so that is the solution, and that is not what we are demanding also. We are demanding Protection Act and to build like restrooms, female restrooms exclusively for them, so that we feel safe. Yeah. And that should be done. Okay. And again, so that is something external protection. Now if I talk about in terms of जो again let's say if your workplace is 100% safe, अब आप वहाँ पे जा रहे हो, या बिकॉज इमरजेंसी वार्ड में आप जाते हो, सो यू डोंट नो कि आपको कितनी इमरजेंसी से डील करना पड़ेगा. सो यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड. तो उसमें मेंटली एग्जॉस्टेड में व्हाट हैपेंस, अ लॉट ऑफ पेरेंट्स से कि मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं, बट व्हाई आई एम आस्किंग फ्रॉम यू बिकॉज यू कैन गिव अ फीमेल पर्सपेक्टिव कंपेयर टू अ मेल पर्सपेक्टिव. सो व्हाट डू यू से कि इतना एग्जॉशन में दे कैन सर्वाइव, और लाइक व्हाट शुड बी द सिनेरियो पेरेंट्स के अपनी तरफ से कर सकते हैं, और वो लड़की जो वहाँ पे अब पढ़ने जा रही है या फिर जो करियर परस्यू करने जा रही है, व्हाट शी कैन डू, बिकॉज यू आर इन दैट शूज, जिससे आप बता सकते हो कि व्हाट शुड बी द केस. लाइक आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चंस. वैसे भी क्योंकि पेरेंट्स का कोई इसमें रोल है ही नहीं.
Okay. like what they can do. If you are assigned a duty of 36 hours, you need to go and do that duty. इसमें पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते और इसमें आप भी कुछ भी नहीं कर Yeah, सकते exactly. हो इसमें। और ये चीज तो आपके कॉलेज इंस्टीट्यूशंस और इवन कॉलेज इंस्टीट्यूशन से भी ज्यादा जो परफॉर्मर बना ही आ रहा है कि वो अगर चेंज होगा तो आई फील वो एक लार्जर लेवल पे जब चेंज आएगा तभी आपको वो चेंज मिलेगा। Your seniors wouldn't be doing it for you. Okay. Yes, exactly. So that is not possible. Okay. So I think laws should be made and rules should be made accordingly. Okay. कि किसी को भी 36 hours या इतने long hours shift नहीं हो, because it's not humanly possible. Yes, exactly. Not just for females, even for males. नहीं है possible कि आप 36 hours अपनी best efficiency और full productivity के साथ you are doing your emergencies and everything. Okay. Now, coming to exhaustion, like obviously बात है when you are in third year right now, तो आप भी exhaust हो जाते होगे. So how do you cope up with that exhaustion? मतलब what sort of other activities you indulge yourself? Because see, एक टाइम के बाद आपको लगता है study is also part of my job. ठीक है, आप clinical exposure के जब clinic में आप rotation में जाते होगे, so you will realize कि अच्छा ठीक है ये मेरा job ही है. But what other activities you indulge on day-to-day basis या फिर on weekly or monthly basis जिससे you can give yourself some rest, mental rest, ताकि you don't overwhelm yourself? Doing co-curricular activities like marathons and preparing for marathons. And I think one thing I'm very blessed with is friends outside of medical school. Okay. Like my friends in medical college are great. I feel मेरी life में balance है इसी चीज की वजह से, because मेरे जो medical friends हैं उनकी वजह से मेरी पढ़ाई हो जाती है. Okay. Because they are in constant pressure कि इतना सारा बच्चा इतना सारा बच्चा इतना सारा बच्चा है, which is necessary because you need to study a lot, you need to prepare for a lot of exams. हर महीने कोई ना कोई एग्जाम्स आ ही जाता है. तो उनकी वजह से पढ़ाई वाला साइड आ जाता है. एंड सिंस आई हैव फ्रेंड्स आउटसाइड ऑफ मेडिकल कॉलेज, उनकी वजह से मुझे इन दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट बना रहता है. एंड दे पुश मी टू डू एक्टिविटीज अदर देन दिस लाइफ व्हिच आई एम लिविंग इन a medical college. Okay. So they push me out of it. So I feel that is extreme relief. और जब मैं वो कर रही होती हूँ, so I don't remember कि मेरी वहाँ भी कुछ life है, like a medical college. और जब पढ़ रही होती हूँ तब ये नहीं लगता कि ये भी कोई life है, running करना है, ये करना है. So they are like two extreme life. I have a balance because I have people with me. So आपने एक हैक फाइंड कर लिया, नॉन मेडिसिन वाले लोगों को डॉक्टर फ्रेंड्स बनाओ. दोनों both are very necessary. Okay, very necessary. So like I hope students will take this as a note. अब like my roommates and my 4-5 friends, and they push me to study also. Okay. Like yeah. Okay. Now next question is कि आपने नीट का एग्जाम दिया, you did your counseling, अब आप मेडिकल स्कूल जा रहे हो, मेडिकल कॉलेज जा रहे हो. So एक होती है हमारी एक्सपेक्टेशन कि ओके दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क आउट, एंड वंस यू गेट इनटू इंस्टीट्यूशन, ओरिएंटेशन होता है, यू स्टार्ट स्टडिंग. सो क्या डिफरेंस हो जाता है, क्या बदल जाता है? मतलब एक एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ऑफ अ मेडिकल स्कूल कॉलेज? Like in my case, I was very aware. मुझे पहले ये बोल दिया गया था कि ऐसा नहीं है कि तुम जाओगी और तुम्हारी लाइफ सेट है, इसके बाद तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं. इवन आई वाज टोल्ड कि इतना हवा में मत रहना कि तुमने नीट यूजी निकाल दी है तो अब सब हो जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे लोग की सप्ली आती है या फिर नहीं हो पाता है उनसे फर्स्ट ईयर में. तो आई वाज टोल्ड कि ओके फाइन, सेलिब्रेट व्हाट यू हैव डन, बट आल्सो लाइक कंटिन्यू वर्किंग. अपने उस बबल से बाहर आ जाना. उस बबल में ज्यादा टाइम रहने की कोई जरूरत नहीं है. इट विल लीड टू फेलियर आल्सो. जो आप बोल रहे हो ना कि यही होता है, एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि अब तो हो गया है, अब तो लाइफ सेट है. ऐसा कुछ भी नहीं है. यू नीड टू वर्क हार्डर इन मेडिकल कॉलेज. तो इसके लिए प्रिपेयर हो. मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस कि ऐसा क्या चैलेंज आते हैं? बिकॉज़ आई विल गिव एन पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट. मैंने नीट का एग्जाम निकाल लिया, नाउ आई एम वेयर आई एम सपोज्ड टू बी. अब क्या डिफरेंस हो जाता है? डिफरेंस ये हो जाता है जब आप नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तब आप बहुत आइसोलेटेड होते हो, बहुत आइसोलेटेड होते हो. और फिर जब आप मेडिकल कॉलेज आते हो, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो, आप बहुत एक्सपोज हो जाते हो. जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो और आप जब ने नीट यूजी निकाल दिया, आप हो सकता है जैसे आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो, तो आपके आसपास किसी ने भी नहीं किया है, तब आपको लगता है कि आप अल्टीमेट हो, आपने निकाल दिया है तो आप ही अच्छे हो. तो आप जब फर्स्ट ईयर में आते हो तब आप देखते हो बाकी सबने भी यही किया है. अच्छा.
तो मैं कुछ अलग नहीं हूँ। और आपको अपनी फैमिली इन सारे साइड से बहुत इज्जत मिलती है, जैसे आपने पता नहीं क्या ही कर लिया हो, वो अभी भी मिलती है। वो सोसाइटी में वो वाली चीज है, ओ डॉक्टर। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है जब आप मेडिकल कॉलेज में, आपके सारे दोस्तों ने भी वही किया हुआ है, हर कोई टॉपर ही रहा है, हर कोई टॉपर रहा है। लाइक मोस्ट साइंस पीपल जो मतलब डॉक्टर्स आते हैं वो अपनी सभी बचपन से ही टॉपर्स रहे हैं, और जब यहाँ आते हैं तो दे सी लाइक हर कोई तो यही कर रहा है, आप में अलग क्या है, और आपका परफॉर्मेंस एकदम से लो हो जाता है। बिकॉज जो सेशनल एग्जामिनेशन होता है उसमें मैक्सिमम लोग फेल ही होते हैं, वो मैटर भी नहीं करता है। लाइक अगर 180 बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं सेशनल एग्जामिनेशन, उसमें से पास जो होते हैं दैट आर 30 to 40, बट दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो बट जब आप पहली बार अपने आप को देखते हो ना, यू हैव फेल्ड एन एग्जाम, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप तो टॉपर थे, हाउ कैन यू फेल एन एग्जाम। तो वो पूरा माइंडसेट शिफ्ट होता है। फिर आप एग्जाम्स को थोड़ा सा नॉर्मली लेने लगते हो। तो वो एक सबसे मैसिव शिफ्ट जो होता है आई थिंक माइंडसेट में, वो यही होता है कि जो आपकी टॉपर माइंडसेट होता है, जो आपकी खुद ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने आप से, जो आपका थ्रेशोल्ड मेंटेन हो जाता है कि मुझे हर एग्जाम में टॉप करना है, हर क्लास में टॉप करना है, यहाँ आके वो सब चेंज हो जाता है। यहाँ पे यू आर मोर लाइक कि मुझे चीजें समझ आ जाए, मैं चीजें पढ़ लूँ। पास होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो नहीं रुकना चाहिए। पास होना इज इम्पोर्टेंट, बट लाइक आई डोंट नो एनीबॉडी जो टॉप करने के लिए पढ़ता है। अब आप टॉप कर लो वो अलग चीज है, बट सबका मेन कंसर्न है कि आप पास हो जाओ, आपको चीजें समझ आ जाए, आपको अगर कोई पेशेंट कुछ सिम्टम्स बता रहा है तो आप जल्दी डायग्नोज कर पाओ। तो आई थिंक दैट इज अ मैसिव शिफ्ट इन योर माइंडसेट। ओके, नाउ एक और चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्टूडेंट इज स्टडीइंग नीट। अब एकदम से उसको एक धक्का लगता है कि लाइक आई एम नॉट गेटिंग अ गुड कॉलेज। अब वो एक नॉर्मल कॉलेज में जा रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। सो हाउ ही कैन, मतलब जो एक गैप आ चुका है उसको वो कैसे फिल कर सकता है, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। हो सकता है जो स्टूडेंट इस साल अभी आपका वीडियो देख रहे हो, दे प्रोबेबली गेट अ decent government medical college. I would not say very good college, but decent हो सकता है, या फिर जो न्यू कॉलेजेस हैं ना, उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही रहेगा कि यार मुझे अच्छा मिल सकता था, मेरा दोस्त है किसी एम्स में चला गया। तो एक जो गैप आ जाता है, हाउ दे कैन फिल दैट गैप, बिकॉज somewhere down the line आप भी you're also trying to fill that gap, so how you're filling that gap? I think with just being consistent. Okay. और एक चीज है कि पढ़ाई सेम है। आज जो बहुत ज्यादा अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में है, और जैसे आई स्टडी इन अ मीडियोकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बट अल्टीमेटली हम सबको ही नीट पीजी देना है। Yes, okay. नीट पीजी देना है, आपको पीजी चाहिए। और जब आप नीट पीजी की तैयारी कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक एक दो ही प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे मैरो से पढ़ रहे हो, प्रेप से पढ़ रहे हो, पढ़ाई सेम है, एग्जामिनेशन सेम है। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू यू एज अ पर्सन, लाइक आप कितने कंसिस्टेंट हो, आप कितनी मेहनत दे रहे हो अपनी। So yeah, I think. Okay, so basically like you can narrow that gap by constantly working on yourself. Okay, fine. I don't think so there's any other solution to it. Okay, fine. मतलब they should be aware of it. Yeah. Okay. Now अब अगर हम आते हैं करियर पर्सपेक्टिव या करंटली स्टडिंग, अब मुझे फ्यूचर का देखना। अब जैसे आपने पीजी बोला, सो इट्स नॉट अ वेरी सिंपल वे कि हमने पीजी कर लिया। यू हैव टू टेक अ डिसीजन आल्सो। अब हो सकता है कि आपको यू डोंट गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यू मे हैव टू ट्राई फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एज वेल। सो हाउ शुड आई प्रिपेयर माय माइंडसेट फॉर द पीजी आल्सो? what specializations I should choose for PG, तो उसके लिए मैं कैसे डिसीजन ले सकूं? बिकॉज राइट नाउ मैंने मतलब नीट का एग्जाम क्लियर किया है, मे बी इन फर्स्ट ईयर, मे बी सेकंड ईयर, मे बी आई एम अ फ्रेश MBBS स्टूडेंट। अब मैं कैसे एक माइंडसेट बनाऊं ताकि जो मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन वाला टाइमलाइन है दैट शुड बी स्मूदर। अदरवाइज फिर होगा ये आई विल बी फंबलिंग वन वे और द अदर, एंड ऑलरेडी आई हैव इन्वेस्टेड माय 6 years ऑफ माय लाइफ। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा टोल हो जाता है। तो एक हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर दैट? आई थिंक अगर आपने जस्ट अपना नीट यूजी अभी क्लियर किया है, सो दिस शुडंट बी योर कंसर्न। ओके, या अभी आप ओपन रहो सारी पॉसिबिलिटीज के लिए। इंटर्नशिप जब आपकी होती है तब यू गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स टू लाइक ऑल योर क्वेश्चंस कि आपको किस, और इम्पोर्टेंट ये है कि बाय द टाइम आप इंटर्नशिप कर रहे हो आपको ये पता चल जाए कि आपको सर्जरी चूज करनी है या मेडिसिन में जाना है। ओके, लाइक
मेडिसिन में दूसरे ऑप्शंस होते हैं, लाइक पीडिया ब्रांच उठानी है, हम्म, लाइक अगर सर्जरी में इंटरेस्ट है ऑब्सगाइनी, ईएनटी, हम्म, तो आपको मेन डिफरेंस ये पता चल जाना चाहिए कि आपको सर्जरी करनी है या मेडिसिन, हम्म, या फिर जैसे आप दूसरे भी जैसे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट में भी आप पीजी कर सकते हो, जैसे आप पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं पसंद हो, अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हो और आपको पेशेंट्स देखना नहीं पसंद है, ओके, so you can go for PG in like pathology, microbiology, because इसमें patient interaction नहीं है। हम्म, So yeah, अपने हिसाब से when you will get to know what you like, और ये सब पता चलता है clinical posting और internship में जाके। ओके, तो ये बात की बात होती है। अभी तो फर्स्ट ईयर में आए हो, आपने नीट यूजी निकाला है, सो लाइक लिव दैट पीरियड ऑफ योर्स। अच्छा, लाइक अभी से डिसाइड करने की जरूरत नहीं, अल्टीमेटली यू विल गेट एन आंसर, नो। हम्म, तो अभी जस्ट बी ओपन, हम्म, जस्ट एक्सपीरियंस एवरीथिंग। और हम्म, मुझे मेरे सीनियर्स ये बोलते हैं कि अभी बस हर चीज़ जाओ, जितना पॉसिबल हो उतनी क्लिनिकल पोस्टें अटेंड करो, पढ़ाई करो, बहुत सारे एमसीक्यूज लगाओ फॉर लाइक नीट पीजी एंड एवरीथिंग, हम्म, और उसके बाद पता चल जाएगा इंटर्नशिप में आने आने तक कि व्हाट यू वांट टू डू। ओके, अभी बस करते रहो, जो प्रोसेस है हम्म, जस्ट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दैट। ओके। नाउ एज अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर क्या चैलेंजेस होते हैं हमें मे बी इन द मेडिसिन फील्ड और मे बी एज अ फ्यूचर डॉक्टर जो कि मे बी सेकेंड जनरेशन डॉक्टर्स को नहीं होते हैं एंड दे हैव अ सॉर्ट ऑफ अ स्मूथ वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर? I really don't think so that would make a difference in my life, because my parents are like अच्छा, very supportive in terms of that. हम्म, और in fact like मेरे पापा को मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट है, ही इज अ बिजनेसमैन, ओके, उन्हें कोई लिंक नहीं है इस सारी चीज़ों से। हम्म, बट जैसे मैं क्लिनिकल पोस्टिंग में जो भी केस देखती हूँ, बाय द एंड ऑफ द वीक मैंने आई कम होम, तो उन्हें सारे केसेस बताती हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, एंड ही हम्म, लिसन्स टू ऑल ऑफ इट। ओके, हाँ, हो सकता है जो सेकंड जनरेशन डॉक्टर्स हैं उन्हें पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती है, हम्म, बट आई थिंक आवर सीनियर्स डू दैट फॉर अस। ओके, तो इफ यू आर ईगर टू गेट आंसर्स टू एनी ऑफ योर क्वेश्चंस, यू विल फाइंड इट। उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स हो, हम्म, तो आपको तभी मिल सकता है। यू हम्म, जस्ट नीड टू बी क्यूरियस एंड ईगर, ओके, फिर आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल जाती है। okay. So tell us about your clinical experience. Any experience which you would like to share? लाइक आई फील सबसे वियर्ड जो केसेस होते हैं वो ऑब्वियसली साइकेट्री में आते हैं। Okay, Psychiatry, I once saw a patient of schizophrenia, okay, and it was very, like mind blowing experience. And mm, mind blowing is a positive word, okay, but like I was just, I didn't have any words at that moment. mm, The patient came, और स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा होता है कि वो दूसरी बातें करते हैं, थोड़े mm, टाइम ये बात चल रही है, फिर ऑल ऑफ अ सडन 5 मिनट बाद उनका टॉपिक बदल जाएगा। okay, Like I just told you before the mm, podcast began, mm. so should I like Yeah, please tell us. say? Mm, So the lady came and she was like, मेरे पीछे ना काली है, okay, mm, वो भाग रही है मेरे पीछे, mm, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, okay, वो आ रही है। mm, And then after 5 minutes she was like, तुम सब रो क्यों रहे हो, mm, मेरी तो बारात चल रही है, रो क्यों रहे हो। mm, फिर आफ्टर 5 मिनट्स she was like कि वहां पे लड़ाई चल रही है ना हिंदू मुस्लिम की, क्यों लड़ रहे हैं वो लोग, क्यों लड़ रहे हैं। And ऐसे वो केसेस थे, एंड that was very disturbing. mm, बट फिर ये होता है कि व्हेन यू हैव मेडिकल फ्रेंड्स अराउंड यू, लाइक योर रूममेट्स एंड एवरीबॉडी, तो आप वापस से वही सेम चीज बताते हैं, तो वो जोक बन जाता है, okay, तो वो आपके दिमाग को ठंडा कर लेता है। mm, वरना अगर आप सिर्फ इन सारी चीजों के बारे में सोचो तो इट्स वेरी mm, स्कैरी, लाइक आपको सपने में उसी के ही आएंगे। mm, बट जब आप अपने दोस्तों से वही सारे, हम लोग, हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हम लोग कोई ऐसा केस देखते हैं तो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं, सो इट्स अ फन थिंग, okay, फिर वो केस आपको इतना बॉदर नहीं करता है। mm, ये केस था। फिर दूसरा, इस साल मैंने ऑटोप्सी देखी थी पहली Okay. बार ऑफ अ 6 month-old बेबी, oh, 6 months old, okay, या बेबी गर्ल। वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी और ट्रॉमेटाइजिंग थी। लाइक आई क्राइड अ लॉट आफ्टर सीइंग दैट, और वो बहुत डिस्टर्बिंग था, बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग, mm, बिकॉज होता है, मतलब ऑटोप्सी देखना इज नॉट लाइक, आई डोंट नो, पीपल
कैसे FMT चूज कर लेते हैं लाइक ब्रांच में कभी FMT नहीं चूज करूँ बिकॉज आई कांट डू सो मच ऑफ लाइक ऑटोप्सीज एंड एवरीथिंग सो या So ultimately, you are saying कि if you get this kind of an exposure, you should have some friends with you so that you Yeah, can share your pain or maybe जो भी you're going through psychologically because अगर वो चीज़ बाहर नहीं आएगी तो it will take a toll on you. डेफिनेटली और बट हाँ जो भी है एक्सपोजर लो Okay. लाइक उससे भागो मत Okay. Now, coming to people who are preparing for NEET right now, probably 2025, 26, we don't know कौन देख रहा है इस वीडियो को. So, how should they structure their studies? मतलब what sort of मतलब schedule क्या हो सकता है उनका पढ़ाई के लिए? And you also aware that कितना ज़्यादा competition हो गया है NEET में. So, पहले तो structure हम कैसा बनाएं ताकि हम properly पढ़ाई कर सकें? And if I'm not able to crack NEET, what are the alternative career options? Because अगर मैंने bio choose किया, so probably I feel like मेरे पास constraint है career options का. So what do you want to say on that? लाइक शेड्यूल के हिसाब से तो आई थिंक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज नंबर ऑफ रिविजन्स रेपिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जितना बार बार रिवाइज हो पाए उतना रिवाइज करो और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो और एक चीज मैंने करी थी जब मैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो जो मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे उसकी मैंने मिस्टेक कॉपी बनाई थी तो मैं क्वेश्चंस लिख लेती थी और लास्ट में मैं वही रिवाइज करती थी बिकॉज अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो एक बार ही गलत होना चाहिए Yes. और अगर आप कॉन्शियस नहीं हो तो आप बार बार वही क्वेश्चन गलत करोगे एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस उसमें आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो आप गलती करो नई नई गलतियां करो गलती रिपीट मत करो Okay. तो उसके लिए मुझे ये मिस्टेक कॉपी वाली चीज अच्छी लगी थी मैंने वो चीज करी थी एंड इट रियली हेल्प मी लाइक जब जैसे 12 सितंबर हमारा एग्जाम था तो 10 और 11 सितंबर मैंने बार बार वो कॉपी देखी थी ताकि जो मैंने गलतियां करी वो मैं वापस से रिपीट नहीं करूँ और शेड्यूल अपने हिसाब से करो लाइक अगर आप सुबह उठ रहे हो फिर आप देखो आपका कौन सा वाला टाइम पीरियड है जहाँ पे यू फील आपका दिमाग सबसे ज्यादा चल रहा है और अगर आपको जैसे फिजिक्स टफ लगता है उस टाइम पे तो उस टाइम पे फिजिक्स करो जब आपको पता है रात में दिमाग इतना चलाना नहीं होता बस जो आपको याद है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो उस टाइम पे बायो के क्वेश्चंस कर लो ऐसे आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो इस हिसाब से शेड्यूल करो डिपेंडिंग कि आपका दिमाग सबसे ज्यादा कब चल रहा है और आपको सब्जेक्ट कैसा लग रहा है क्या आपको किस में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कौन सा मॉडरेट कौन सा इजी उस हिसाब से डिवाइड योर टाइम Okay. एंड डोंट फॉलो लाइक अगर आप किसी जैसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस होते हैं कि ऐसा करो ये इस टाइम पे यही करो 7:01 पे ब्रश करो 7:02 पे नाश्ता करो ऐसा तो नहीं करना चाहिए. हाँ बिल्कुल भी नहीं और इवन ये भी नहीं करना चाहिए कि सुबह को सबसे पहले फिजिक्स करो Okay. अब क्या पता तुम्हें केमिस्ट्री करनी हो तो लाइक किसी भी एडवाइस 100% मत फॉलो करो एडवाइस सुनो अप्लाई करो ट्राई करो एक्सपेरिमेंट करो और फिर अगर वो आपके लिए काम कर रहा है तो कंटिन्यू करो बट किसी को भी ऐसे बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होके जो उसने बोल दिया है पत्थर की लकीर वाली चीज नहीं करनी है बिकॉज नहीं होता है वो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी नहीं हो सकता और आपका अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की नीट यूजी ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन तो पहले तो अगर अभी नीट यूजी के लिए पढ़ रहे हो तो उसने वही सोचो और दूसरी चीज है उसके अगर वो नहीं हुआ तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ जाएंगे बट अगर आप पहले से ही दिमाग में 3-4 ऑप्शंस लेके घूमते हो ना तो बीच में ना ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं हो रहा है मुझसे और अगर आपके पास उस टाइम पे दूसरा करियर ऑप्शन होगा ना तो यू वुड बी लाइक कि हाँ ये नहीं हुआ तो ये तो है ही और इस प्रोसेस में आप बहुत बारी अपना 100% नहीं दे पाते हो बट जैसे अगर आपके पास सिर्फ प्लान ए है तो उस टाइम पीरियड में आपके पास ये होगा कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता है क्या करना है तो इट्स बेटर आज नहीं हो रहा है कल हो जाएगा तो इसी में मैं अपना 100% दे देता हूँ लाइक सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस ओरिएंटेड रहो रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो बिकॉज जब आप अपने 2 या 3 साल के पीरियड में होते हो ना आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करूँगा क्या करूँगी तो बहुत बार आई फील वो डेज बस पास होने का वेट करो बिकॉज वो परमानेंट फीलिंग नहीं है तो वो पास हो जाएंगे इसके बाद अब आपका ये हो गया आपने अपना पूरा 100% दिया आपके प्लान ए को आपका फिर भी नहीं हुआ आपका रिजल्ट आ गया फिर आप देखो कि आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है रिजल्ट इन द सेंस आ गया लाइक जिस दिन आप नीट देख के आते हो आपको अपना स्कोर पता चल जाता है आप बहुत अवेयर हो जाते हो कि मुझे क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है उसके बाद दूसरे करियर पर ये दिमाग में रखो कि करियर ऑप्शंस बहुत है ये वाली लाइक डोंट go into like too much options
while preparing for the exam. बट हाँ, ये भी दिमाग में रखना है कि सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी मैं बस वहाँ जा नहीं रहा हूँ बिकॉज मुझे अभी अपने यहाँ पे 100% देना है, पर अगर बाई चांस ये नहीं हुआ तो फिर है मेरे पास, मैं जो करूँगा बहुत अच्छा कर लूँगा. हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू, और फिर ऑप्शंस आ जाते हैं. ओके, नाउ आपने जैसे बताया यू हैव टेकन अ ड्रॉप, सो ऑब्वियसली बात है यू वर वेरी ब्रॉड माइंडेड कि इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट आपके पास ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन होंगे, बट एक चीज रह जाती है हमारे अंदर कि नहीं यार मुझे मतलब करना तो एमबीबीएस ही है, एक चीज बैक ऑफ द माइंड रहती होगी. एंड द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्योंकि जब आपने ड्रॉप लिया होगा तो यू मस्ट हैव सीन कि आपके जो कलीग्स हैं मे बी कोचिंग सेंटर में हैं या फिर मे बी आपके स्कूल्स हैं, दे हैव joined a particular college जहाँ पे वो MBBS कर रहे हैं. Now they are probably posting on Instagram, Snapchat पे डाल रहे हैं I'm pursuing this and something like that. तो back of the mind हमें ये लगता है कि यार करना तो मुझे ये भी है. अब चीज ये होती है कि like when you are in school you don't have this kind of a pressure because आपके साथ सारे students पढ़ रहे हैं. Now you take a drop. अब जब आपने ड्रॉप लिया तो you are sort of isolated because droppers काफी कम students होते हैं. तो how did you keep yourself motivated कि मुझे ये चीज कर लेनी चाहिए? और सेकंड जो डिमोटिवेशन आता ही है, इट्स नॉट कि आपको डिमोटिवेशन नहीं आएगा. सो हाउ विल यू कोप अप विद दैट बिकॉज हो सकता है कोई स्टूडेंट अभी ड्रॉपर हो एंड दे माइट बी एस्पायरिंग कि मुझे सपना दीदी जैसा बनना है डॉक्टर. अगर उन्होंने ड्रॉप लिया तो हाउ दे कैन कीप देमसेल्फ मोटिवेटेड? I was off the Instagram, Okay. no social media. Okay. Yeah, but हाँ आपको कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाता है कि ये इस कॉलेज में है उस कॉलेज में. आई फील सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम फिर उस टाइम पे द पीपल अराउंड यू. Okay. और एक चीज बहुत अच्छी थी लाइक अकाउंटेबिलिटी रखना. वो जो आप बोल रहे हो कि डिमोटिवेशन आता है, आपको लगता है आपसे नहीं हो रहा है, दूसरों का हो गया. आई फील अगर आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है उस टाइम पे, जैसे आप रोज बता रहे हो कि मैं इतना इतना कर रही हूँ, आज मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, आज मैंने प्लान किया था मुझे 4 घंटे पढ़ना है पर मैं पढ़ सिर्फ 2 घंटे पाई और मैं आई फील लाइक अ फेलियर. या इस टेस्ट में मेरे पिछली बार ही 600 आए थे, इस बार मेरे 550 आए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वापस से इस साल भी मेरा नहीं होगा. तो जो आपके पीपल होते हैं जो आपके अराउंड होते हैं वो आपको बताते हैं, फिर वो आपको रिवाइंड करवाते हैं आपकी पूरी सिचुएशन कि आप इतने टाइम से काम कर रहे हो और हो जाएगा. आई थिंक उस टाइम पे बस आपको लोग चाहिए रहते हैं. Okay. और खुद पे और मेडिटेशन. Okay, meditation. लाइक हाँ, कभी कभार तो दूसरे जो बोलते हैं उस पर भी विश्वास नहीं होता है. कभी कभी ऐसा लगता है कि दूसरे तो यार बस ऐसे ज्ञान देने के लिए ज्ञान दे रहे हैं और उसे क्या पता व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. बट मेडिटेशन लाइक रियली हेल्प्स. लाइक आई हाँ, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 13 सितंबर 2020 नहीं हुआ था, फिर उसके बाद से आई स्टिल रिमेम्बर द डेट 24 सितंबर 2020 से मैंने मेडिटेशन रोज करना चालू किया था. Okay. एंड दैट रियली हेल्प. वो आपका माइंडसेट बहुत चेंज करता है, वो शिफ्ट लाता है. वही बार बार वही चीज हो जाती है, मैं एक ही चीज बार बार बोल रही हूँ, बट लाइक दैट रियली हेल्प मी कि प्रोसेस ओरिएंटेड, कि रिजल्ट का मत सोच, करती जा, बस करती जा. और मेरे सर भी वही बोलते थे कि बस गलतियां देख, कुछ मत कर, मार्क्स मत देख, रिजल्ट क्या है वो मत देख, गलतियां देख, उसे नोट डाउन कर, उसे सीख, और वो गलती वापस नहीं होनी चाहिए. आई फील अगर सिर्फ इस बात पे फोकस हो जाए ना कि गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, बहुत आप आगे बढ़ जाते हो धीरे धीरे करके. एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी, वेरी लॉन्ग. ओके. अब एक और चीज प्रोबेबली पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो हाउ पेरेंट्स कैन बिकम सपोर्ट टू देयर चाइल्ड? बिकॉज होता ये है कि लाइक मतलब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि पेरेंट्स क्या हेल्प करेंगे, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, पेरेंट्स मे बी एग्रेसिव और नहीं एग्रेसिव बट दे वांट बेस्ट आउटकम फॉर देयर चाइल्ड. अब हो सकता है कि दे आर वेरी एग्रेसिव कि बेटा पढ़ाई करो. सो हाउ पेरेंट्स कैन ड्रॉ दैट लाइन कि वहां पे वो बैलेंस भी कर सके एंड दे आर अ कांस्टेंट सपोर्ट टू देयर चाइल्ड आल्सो, बिकॉज चाइल्ड के साथ होगा ये कि इफ दे डू नॉट हैव फ्रेंड्स जहाँ पे उन्हें सपोर्ट मिल रहा है तो फिर पेरेंट्स की वजह से वो और डिमोटिवेट हो जाएंगे, मेरे पापा मुझे डांटते हैं, मेरी मम्मी मुझे डांट रही है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ. सो हाउ पेरेंट्स कैन बी सॉर्ट ऑफ अ सपोर्टिंग फैक्टर फॉर स्टूडेंट्स? आई थिंक पेरेंट्स का भी ये माइंडसेट बहुत जरूरी होना चाहिए. बहुत बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा इतना अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ हो तो उसका क्लियर ही होना चाहिए. लाइक पेरेंट्स का भी बहुत नैरो पर्सपेक्टिव हो जाता है. उन्हें भी यही लगने लगता है कि अगर बच्चे का नहीं हुआ तो फिर इसके बाद वो क्या करेगा. तो पेरेंट्स को तो सेल्फ अफर्म भी करना चाहिए कि हाँ दूसरे भी हैं, और पहले खुद एजुकेट करना चाहिए उन्हें. अगर वो एजुकेट होंगे तो वो बच्चे पे इतना प्रेशर नहीं डालेंगे. और दूसरी चीज, जैसे
पेरेंट्स को अपना नरेटिव चेंज करना चाहिए बच्चों के लिए, लाइक उससे बार बार ये पूछने के जगह कि इस टेस्ट का क्या रिजल्ट था, कितना पढ़ लिया, ऐसे उससे पूछो गलती क्या करी थी, और जो पिछली बार गलती करी थी, पिछली बार 10 गलतियां करी थी, तो उस 10 में से कितनी बार कौन सी गलती रिपीट हुई इस बार, और ये क्यों हुआ, ये वजह पूछने के कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे दोस्त के कितने आ रहे हैं। वो वाला कंपैरिजन आई फील पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और उन्हें कभी भी ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन कभी ये बोलना चाहिए कि तेरा दोस्त भी तो तेरे साथ ही पढ़ रहा है, उसके कैसे इतने आ रहे हैं, तेरे क्यों नहीं आ रहे हैं। ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स को। अच्छा, मतलब कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं, बिकॉज एक जब बच्चा प्रिपेयर कर रहा है वो अपने ऊपर खुद ही बहुत प्रेशर डालता है। बहुत पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता कि वो खुद बहुत प्रेशर में है, यू डोंट नीड टू लाइक पुट ऑन एक्स्ट्रा प्रेशर। और बाकी जो थोड़ा बहुत प्रेशर है, लाइक आई एम स्पीकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी, पेरेंट्स के साथ भी रखना अच्छी बात है। अगर आपसे पेरेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कि इस टेस्ट में कितनी गलती हुई, अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान दो हो, और पेरेंट्स को भी उसी पे ध्यान देना चाहिए। ओके, नाउ आई फाइनल 2 क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक गलती जो आपने जब आपने ड्रॉप लिया था तो वो करी जो आप चाहोगे कि फ्यूचर स्टूडेंट्स ना करें? आई थिंक ये सोचना कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव माइंडसेट, और इट पुट्स यू अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। और आई फील पढ़ाई सब बहुत अच्छी कर लेते हैं, बट जब आप 3 घंटे बैठते हो ना, तो पढ़ाई से बहुत ज्यादा मैटर करता है कि उस टाइम आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर में होगे तो आपको आती हुई चीजें नहीं आएंगी। yes. नहीं आती हैं अगर आप इतने प्रेशर में हो। और अगर आपका माइंडसेट है, आप काम हो, आपको पता है चीजें हो जाएंगी, तो आपका दिमाग ज्यादा चलता है। बिकॉज प्रिपरेशन सब उतनी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फिर बोलते हैं किस्मत काम नहीं आई, बट आई फील किस्मत से ज्यादा थोड़ा सा माइंडसेट जो इतने टाइम का होता है वो बहुत मैटर करता है। हाँ, तो ये मतलब माइंडसेट अपने अंदर रखना, और कंसिस्टेंसी, और डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैंने मैंने अपने पहले जब अटेम्प्ट में इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, और इतने नंबर ऑफ टाइम रिवीजन भी नहीं किया था। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करी, नंबर ऑफ रिविजन्स मेरे ज्यादा हो गए, और हाँ, सबसे बड़ी चीज माइंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी आप कॉलेज में हैं, यू आर ऑलरेडी 3 years डाउन द लाइन, एक मिस्टेक जो इनकमिंग फ्यूचर डॉक्टर्स या प्रोबेबली हु हैव टेकन एडमिशन दे शुड नॉट डू व्हाइल गेटिंग इनटू, मतलब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अब उन्हें वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। वन मिस्टेक व्हिच यू मेड, यू रियलाइज कि नहीं ये गलती नहीं होनी चाहिए थी मेरे, गलती नहीं होनी चाहिए, लाइक मे बी अ मिस्टेक जो आपने किया कमिट। हाँ, ओके, आई फील कि मुझे फर्स्ट ईयर से ही ज्यादा पढ़ना चाहिए था। ओके, हाँ, बिकॉज जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तब आपके सीनियर्स आपको, मतलब 2 तरह के सीनियर्स होते हैं। एक तरह के सीनियर्स होते हैं दे आर लाइक कि पढ़ना है, और दूसरे तरह के सीनियर्स आर लाइक क्या है अभी तो तुम आए हो, एंजॉय करो, क्योंकि जरूरी है। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए फर्स्ट ईयर से इतना ज्यादा पढ़ रहे हो कि आप बर्न आउट हो जाओ, बट थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। लाइक फर्स्ट ईयर में तो आई रिमेम्बर फर्स्ट ईयर तो इतना हवा में गया है। लाइक जब एग्जाम्स होते थे तब पढ़ते थे, और तभी निकल भी जाता था, एग्जाम भी सही हो जाता था। बट हाँ, आई फील कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। ज्यादा पढ़ोगे तो बर्न आउट हो जाओगे। जब सही टाइम होगा पढ़ने का तब नहीं पढ़ पाओगे, बट हाँ, टच में रहो। ओके, तो ये वाली चीज। थैंक यू वेरी मच सपना, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहता हूँ कुछ स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दे बिकम योर जूनियर्स and you can further guide them. My pleasure, sir. Thank you. Thank you. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.